Friends, is this a yatra which symbolizes corruption, injustice and arbitrariness? Far from being an anti-corruption yatra, is this a yatra symbolic of corruption, injustice and arbitrariness? Let me explain. Let's look at corruption. I make bold to say that perhaps in 15, 20, 25 years, nobody except this government and the Congress party in particular has taken more concrete steps towards in respect of curbing corruption. Now you know the details, so I'm going to say a different thing. You know that for black money, and you were told this yesterday also, some 80 odd agreements, new bilaterals, new clauses, and I only want to highlight two recent developments which give you an idea of how these new changes are already taking effect. The Swiss government has now agreed that prospectively it will start disclosing information. The French government example you were given has already done so for third parties. The Lokpal is actively underway. We can argue about the clauses, but for the first time in several decades, a strong, comprehensive, effective, remedial Lokpal bill will be available in the proximate future. But there is much more. Corruption is not about black money or Lokpal only. Corruption is about reducing discretionary powers. It is this UPA and this Congress which has department-wise already listed those powers which have to be eliminated. Already listed. Happened after Congress President Sonia Gandhi's Burari declaration. It is this UPA, this Congress, which has set up a high-powered committee which has given specific recommendations about reducing corruption in two crucial areas: mineral resources and generally other natural resources other than minerals. And it is now the Prime Minister who has talked just recently, very recently, about the active initiation of certain crucial electoral reforms, many of which pertain directly to corruption issues. I want to ask, and as I said, I can go into lots of details, but I want to ask a simple question: which of these specific things which I have listed before you, and there are many more, I have not listed all, which of these specific things did Mr. Advani, the BJP or anybody in the BJP do one concrete step? Tell me one concrete step in 6 years on these issues. How many speeches did Mr. Advani give on black money from 98 to 2004? And was it amnesia then, or is it selective amnesia now? Why, and this is a very important question, many of these things I am asking you should by now have been initiated by Mr. Advani, the BJP, the entire BJP, in each BJP-ruled state. Tell me which has the Lokayukt model which they are asking as per Jan Lokpal model in Gujarat, in Uttarakhand. Has Mr. Advani asked ever as to why there is no Lokayukt actually sitting under that act, even though that act is of course very different from Jan Lokpal? Has any BJP state listed the discretionary powers department-wise in that state, listed them for elimination, as is being done as I speak in the central government? Therefore, the question is, पिछले 20 वर्षों में ठोस कदम किसने उठाए हैं, घड़ियाली आंसू किसने बहाए हैं?
यात्राओं के नाम पर देश को किसने बरगलाया है और ठोस कदम उठाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चलाया है, किसने? सच्चाई ये है मित्रों कि ये यात्रा अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के समर्थन की यात्रा है। ये यात्रा आपको नहीं बताती कि आरटीआई इस देश में पहले कौन लाया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा अभियान आरटीआई था। क्या किया बीजेपी ने इसके विषय में 6 वर्षों में? ये यात्रा ये नहीं बताती आपको कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1988 जब आया था एक्ट, उसके बाद अब हुआ गया है, अब किया गया है हमारी सरकार द्वारा। ये नहीं बताते इस यात्रा में आपको कि विसल ब्लोअर बिल कौन लाया और किसने एक बड़ा व्यापक रिपोर्ट दी उसके विषय में। ये सब मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के विषय में बात कर रहा हूँ, और कई चीज़ें अलग हैं। और ये नहीं बताते आपको कि अभी प्रोक्योरमेंट के विषय में संयुक्त राष्ट्र के मॉडल पर प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक व्यापक कानून प्लानिंग कमीशन ने भी प्रस्तावित कर दिया है, और एक उच्च स्तरीय समिति मिस्टर विनोद ढाल के तत्वाधान में उन्होंने भी प्रस्तावित किया है, जो कि हर पब्लिक प्रोक्योरमेंट को इंक्लूडिंग पीपीपी मॉडल वाले को लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र का मॉडल है। तो ये सब आप जो देख रहे हैं, ये जानबूझकर कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है। प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और ये वो विषय हैं जिनमें से आपको एक विषय भी, मैंने आपके समक्ष कम से कम 10 विषय या सूची दी है 10 मुद्दों की। मैं जानना चाहूँगा कि इनमें से क्या चीज़ बीजेपी ने गुजरात में की है, उत्तराखंड में की है या कर्नाटक में की है। ऐसा कौन सा कानून है प्रादेशिक स्तर पे? तो जो लोग अभियान की बात करते हैं, ये जाहिर है कि उनका उद्देश्य एक दूसरा है। उद्देश्य नहीं है ये, उद्देश्य है आपका ध्यान बरगलाना। कि अभियान कभी एडवाणी जी इस विषय पे नहीं करते कि लोकायुक्त वहाँ पर जो है गुजरात में, उसका स्वरूप जन लोकपाल जैसा नहीं है, और जो स्वरूप है उसके अंतर्गत 9 वर्षों में कोई लोकायुक्त बिठाया नहीं गया है। और विशेष रूप से ये अभियान नहीं करते कि वहाँ अन्याय और अत्याचार हो रहा है आम सरकारी पद पर आसीन लोगों पे, पुलिस अफसरों पे। इसलिए मैंने कहा कि इन ठोस मुद्दों पे कोई बात नहीं करते, वो यात्रा की बात करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका नहीं, उनकी पार्टी का उद्देश्य, और उनका उद्देश्य ये है कि आपका ध्यान बांटे, और ध्यान बांटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जिस प्रकार से लगभग 4 वर्षों तक कर्नाटक में आंख मूंदी, लगभग 3 वर्षों तक उत्तराखंड में सिर्फ इसलिए कि अब चुनाव निकट आ रहे हैं कोई ठोस कदम नहीं लिया अभी तक। ऐसे लोग आज भ्रष्टाचार के नाम पर अभियान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुखद कोई प्रकरण नहीं हो सकता। और आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि हमारी जो सूची है लगभग 15 से 20 आइटम्स की, उनमें से कौन सी चीज़ करके दिखाई है बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 98 से 2004 केंद्र के स्तर पे, और अगर वहाँ नहीं तो अब क्या उनको एक्सक्यूज़ है कि उन्होंने अपने किसी प्रदेश में इनमें से एक भी चीज़ नहीं की, लागू नहीं की, शुरुआत नहीं की, लाए नहीं, कार्यान्वित नहीं की। और यही सच्चाई एक्सपोज करना हम समझते हैं हमारा उत्तरदायित्व बनता है। थैंक यू। 2009 में अडवाणी का कहना था कि 70 लाख करोड़ के आसपास की राशि विदेशों में है, और अब हाल में वो कह रहे हैं कि करीब 2.5 लाख करोड़ की राशि है। आपको लगता है वाकई राशि कम हुई है? पहले उनका अनुमान गलत था और अब अनुमान? देखिए, इसके 2 उत्तर हैं, और पहला उत्तर यद्यपि मैं दोहरा रहा हूँ उसको कम नहीं समझिए, वो मुख्य उत्तर है। पहला प्रश्न है या पहला उत्तर है कि इस प्रश्न को, जिसको आप सही बोल रहे हैं, 2009 में क्यों उठाया उन्होंने? क्या इस देश में काले धन का नाम आपने सुना नहीं पहले 2009 के? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इतना आसान नहीं है प्रश्न से आँख चुराना जो बीजेपी चुरा रही है।
2003-2-1 में भाषण कम से कम क्यों नहीं दिया, एक आदमी को भेजा क्यों नहीं। आज 80 करारनामे इस पे हुए हैं, 80, और कई देशों ने ये लिखित रूप से, और ये महत्वपूर्ण बात है, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश ने लिखित रूप से कहा है कि भविष्य के लिए ये खुलासा होगा। दूसरा उत्तर आपके लिए कि जाहिर है कि आंकड़े फेंके जाते हैं राजनीतिक सनसनीखेज के लिए, जाहिर है कि ये ओवरस्टेट किए जाते हैं, अतिशयोक्ति की जाती है, क्योंकि इनका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। अगर आप इसको ठोस तरीके से लॉजिक के आधार पर करें, हाँ, अगर आपको प्रेस पे सनसनीखेज फैलानी है, देश को बरगलाना है, वोटों के लिए मांग करनी है, तो आप इस तरह के फिगर आंकड़े फेंक सकते हैं। आई एम कमिंग। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने 2 चिट्ठियां जारी की है, आरएसएस की चिट्ठी है जिसमें अन्ना हजारे को संबोधित। मैंने आज की चिट्ठी देखी नहीं, मैंने अभी सुना उसके बारे में। आपको मैं भी चेक करूँगा, आप भी चेक करें, जनरल सेक्रेटरी द्विवेदी साहब से वो बताएंगे। मैं अभी इस पर आज उत्तर नहीं दे सकता उसके बारे में। मैं चेक करके, सिर्फ चिट्ठी आपसे लेके नहीं, आप जनरल सेक्रेटरी साहब से बात कर लें और मैं भी बात करके आपको उत्तर दूंगा। आई एम नॉट आंसरिंग ऑन दैट, व्हाट इज आस्किंग क्वेश्चन, आस्क यू एनीथिंग एल्स। आई एम गोइंग टू चेक इट एंड लेट यू नो। हाँ, यस यस। Anna Hazare's movement had tacit support of RSS and BJP, something which has been denied by Anna Hazare and his team members. That's all right. That's all right. There is a statement by him. It is in the public domain. People may deny it, and people may draw their own conclusions. He has given evidence. He has given statements. He has given lots of details. I did not say that. That's your words, and you tend to always mislead me and yourself. What can I do? What are you trying to say? I have told you that that is given in writing as far as yesterday's letter is concerned. I have told you about today's letter. You have to check with the General Secretary. Yesterday's letter, he has given reasons for it. You please look at the, he's not given a letter without reasons. He has given reasons. He has quoted from the RSS and he is entitled to his view. I am not saying others are not entitled to their view, but where is the question of commenting again and again on a letter on which there is a public domain? There are reasons given there. Yeah. We feel that he has made a point of view which is fully entitled to make and he has given supporting reasons for it. देखिए, इस विषय पे आपने कई प्रश्न पूछ लिए हैं, कांग्रेस ने उत्तर दे दिया है। मैं दोहरा रहा हूँ, 2-3 स्पष्ट मुद्दे हैं। पहली बात, हमारे लिए हर चुनाव अहमियत रखता है। हम लोकतंत्र में, गणतंत्र में 125 साल से पुरानी पार्टी हैं जो इसमें विश्वास करते हैं, इस प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और कमर कस के कानून के अनुसार, नियम के अनुसार हम चुनाव लड़ते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ये प्रश्न